This conference will now be recorded. Very good morning, all of you. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3, matrices from NCERT. And चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करते हैं. करणप्रीत इंट्रोडक्शन पढ़िए. The knowledge of matrices is necessary in various branches of mathematics. Matrices are one of the most powerful tools in mathematics. This mathematical tool simplifies our work to a great extent when compared with other straightforward methods. The evolution of concept of matrices is the result of an attempt to obtain compact and simple methods of solving systems of linear equations. The matrices are not only used as a representation of the coefficients in the system of linear equations, but utility of matrices far exceeds that use. Matrix notation and operations are used in electronic spreadsheets program for personal computer, which in turn is used in different areas of business and science like budgeting, sales projection, cost estimation, analyzing the results of an experiment, etc. Also, many physical operations such as magnification, rotation, and reflection through a plane can be represented mathematically by matrices. Matrices are also used in cryptography. This mathematical tool is not only used in certain branches of science but also in genetics, economics, sociology, modern psychology, and industrial management. In this chapter, we shall find it interesting to become acquainted with the fundamentals of matrix and matrix algebra. गुड. आगे पढ़िए पार्थ. Suppose we wish to express the information that Radha has 15 notebooks. We may express it as 15 with the understanding that number inside bracket is the number of notebook that Radha has. Now if we have to express that Radha has 15 notebooks and 6 pens, we may express it as 15 commas 15 6 with the understanding that first number inside bracket is the number of notebook, while the other number inside is number of pens possessed by Radha. Let us now suppose that we wish to express the information of possession of notebooks and pens by Radha and their two friends, Fauzia and Simran, which is as follows. Radha has 15 notebooks and 6 pens. Fauzia has 10 notebooks and 2 pens. Simran has 30 notebooks and 5 pens. This could be written in tabular as form. Radha 15 6 जो भी है. Then this can be expressed as 15 6 10 2 13 5. गुड. ये आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको किस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या? कि नोटबुक और पेन को अगर कितने कितने बताने हैं तो यहाँ नेम लिख दिए, रो वाइज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यहाँ कॉलम बना दिया. ठीक है. देन ये 15 बता रहा है कि राधा के पास कितने नोटबुक हैं एंड पेन कितने हैं. देन फौजिया के पास हाउ मेनी नोटबुक एंड हाउ मेनी पेन शी है. तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या? इसको इस तरह से भी लिख सकते थे. अगर कॉलम वाइज नेम लिख दिया जाए और आर्टिकल वाइज रो लिख दिया जाए तो ये भी एक तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल था. तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है इनको आगे डिटेल में समझते हैं. पुलकित पढ़िए क्या लिखा है आगे. चारुल पढ़िए. Yes, sir. In the first arrangement, sir, ये तो हो गया. 58 से पढ़ूं? नहीं पढ़िए ना. अच्छा ठीक है. In the first arrangement, the entries in the first column represent the number of notebooks possessed by Radha, Fuzia, and Simran, respectively, and the entries in the second column represent the number of pens possessed by Radha, Fuzia, and Simran, respectively. Similarly, in the second arrangement, the entries in the first row represent the number of notebooks possessed by Radha, Fuzia, and Simran, respectively.
The entries in the second row represent the number of pens possessed by Radha, Fuzia and Simran respectively. An arrangement or display of the above kind is called a matrix. Formally, we defined a matrix as definition 1. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. We denote the matrix by capital letters. The following are some examples of matrix. ओके ऑर्डर पढ़िए ऑर्डर यहाँ नीचे पढ़िए नीचे नीचे इन द अबव एग्जांपल्स In the above example, yes sir. In the above example, the horizontal lines of elements are said to constitute rows of the matrix and the vertical lines of the elements are said to constitute the column of the matrix. Thus, A has 3 rows and 2 columns. B has 3 rows and 3 columns, while C has 2 rows and 3 columns. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़िए पुलकित तो कंटिन्यू करूं? पुलकित आप पढ़िए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m cross n, or simply m cross n matrix, read as m by n matrix. So, referring to the above examples of matrices, we have A as 3 by 2 matrix and B as 3 by 3 matrix and C as 2 by 3 matrix. We observe that A has 3 by 3 into 2 equals to 6 elements, and B and C have 9 and 6 elements respectively. In general, an m by n matrix has the following rectangular array. देखिए यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना चाहिए कि ऑर्डर जो है वो रो पहले रो कितने हैं और फिर कॉलम कितने बताते हैं। जैसे यहाँ पे एनी एलिमेंट्स को कैसे लिख रहे हैं, ये ए आई जे लिखा हुआ है, आई का मतलब रो है और जे का मतलब कॉलम की पोजीशन है। तो यहाँ पे रो और कॉलम जो है उसके हिसाब से आप चल रहे हो। जैसे कि रो कितने हैं, m रोज है, तो i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी m तक चलेगी, एंड j जो है वो कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होके n तक चलेगा। तो ये i और j इस तरह से लिखा जाता है। सपोज आपको अगर बोल दे कि A23, इसका मतलब ये है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये समझ गया, थर्ड कॉलम का मतलब ये पोजीशन ऐसे समझ में आना चाहिए। एड्रेस समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक अरेंजमेंट है, एंट्रीज जितने एंट्रीज हैं वो रो और कॉलम वाइज अरेंज है, तो रो और कॉलम में कहाँ पे है, किस पोजीशन में बताने के लिए बस ये एड्रेस का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ए आई जे समझ में आ रहा है मैट्रिक्स में। आगे देखिए, करणप्रीत नोट पढ़िए। We shall follow the notation namely आगे जो इधर आपका कैमरा ऑन नहीं है to indicate that तो A मैं is a दूसरे matrix सिस्टम पे तो उसमें कैमरा नहीं चालू हो रहा है। हाँ पढ़िए आगे करणप्रीत। of order m into n. We consider only those matrices whose elements are real numbers or functions taking real values. गुड। ये पढ़िए, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट। We can also represent any point x, y in a plane by a matrix, column or row as x, y. For example, point P 0, 1 as a matrix representation may be given as P equals to 0, 1. ये समझ में आ रहा है कि जैसे प्लेन में कोई भी पॉइंट है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो रो में या कॉलम में। जैसे 2D का पॉइंट है वैसे 3D के पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ से पढ़िए बेटा, ऑब्जर्व दैट। Observe that in this way we can also express the verticals of a closed rectilinear figure in a form of matrix. For example, consider a quadrilateral ABCD with vertices A 1, 0, B 3, 2, C 1, 3, D -1, 2. Now quadrilateral ABC. हाँ, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे इसके पहले हमने एक पॉइंट लिखे थे, 2D में पॉइंट थे, ऑर्डर पेयर समझ में आ रहा है बेटा। अब जैसे राधा के पास 15 नोटबुक थे और 10 पेन थे,
तो उसको हमने 15,10 लिखा था, याद होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन थे, फाजिया एंड वन मोर स्टूडेंट वाज देयर, ठीक है। तो लाइक दैट, जैसे कि वो जस्ट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे ऑर्डर पेयर में इंफॉर्मेशन तो ही रखते हैं हम लोग, करेक्ट। एक्स एक्सिस पे हमने कोई नाम दे दिया, सपोज स्टूडेंट के नेम दे दिया, वाई एक्सिस पे उनकी स्कोर दे दिया, तो बेसिकली क्या है, ऑर्डर पेयर में इंफॉर्मेशन ही तो रखते हैं। तो इंफॉर्मेशन रखना तो हम जो है वो क्लास 10 से कर रहे हैं ऑर्डर पेयर में, अगर हम 3D में देखें तो ट्रिपलेट हो जाते हैं, वही चीज, ठीक है, वहां पे ऑर्डर। तो ऐसे ही जैसे पॉइंट है, एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को एक साथ मैट्रिक्स में रख दिया है। आगे पढ़िए, 10 मैट्रिक्स कैन बी। Thus, matrix can be used as representations of verticals of geometrical figures in a plane. चलिए, और कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स ऐसी कोई चीज है जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रखा जा सकता है। पढ़िए एग्जांपल नंबर 1, पार्थ। Consider the following information regarding the number of men and women workers in the factories 1, 2, and 3. First factory, men workers 30, women worker 25. Second factory, men worker 25, women worker 31. Third factory, men 27, women worker 26. Represent the above information in a 3x2 matrix. What does the entry in the third row and second column represent? ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या, कि इसको, इस पूरे इंफॉर्मेशन को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स क्या है आपके लिए, आपने क्या समझा मैट्रिक्स से? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक इस तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन को रखते हैं, ठीक है। आप उसमें अगर कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम चल जाता है। तो ये कुछ चीजें मेरे ख्याल से भी पिक्चर बनना शुरू हो गया होगा आपके दिमाग में मैट्रिक्स का। तो देखो ये बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन था, उसको हम रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे चाहें, ठीक है। जैसे 3x2 है तो 2x3 में भी अरेंज कर सकते हैं। चलिए, अब जब आपने समझ लिया कि इस तरह के इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं, रेक्टेंगुलर डायमेंशन हो गए इसके, रो और कॉलम होते हैं, तो बोल रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर आपको समझ में आ रहा है, 1/8 हो सकता है, 8/1 हो सकता है, 4/2 हो सकता है, 2/4, तभी तो 8 आएंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू विड्थ हो गया, बस वही एंट्रीज हो गए, उसकी चीजें समझ में आ रही होंगी मेरे ख्याल से आपको। क्लियर है क्या? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3, चारुल पढ़िए। Construct a 3x2 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 I minus 3j. देखिए यहाँ पे आपको Aij को समझना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है Aij। अब यहाँ पे I कहाँ तक चलेगा? I स्टार्ट होगा 1 2 3 से एंड J होगा 1 2। पॉसिबल वैल्यूज I और J की यही है। अब अगर आपको एक एक एंट्रीज निकालनी तो इतना तो समझ गए कि टोटल 6 एंट्रीज होंगी। तो ये पूरे 6 एंट्रीज के लिए मैंने एक रफ मैट्रिक्स बना लिया। ये समझ में आ रहा है क्या? रो और कॉलम वाइज एंट्री कर रहा है। तो ये 1 1 बता रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, देन 2 1 बता रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 बताता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहला नंबर हमेशा रो बताता है, सेकंड नंबर हमेशा कॉलम बताता है। एड्रेस समझ में आ रहा है? बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज रख देने हैं। 1 1 मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, जस्ट लाइक एक फंक्शन होता है ना, बस इनपुट डालते जाना, आउटपुट आते जाएगा और बाकी एंट्रीज मिल जाएंगी। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये भी मैट्रिक्स है, बस इसमें क्या है, एलिमेंट्स को फॉर्मुलेटेड कर दिया गया है, एक फॉर्मूले के तौर पे रख दिया है। समझ में आ रहा है क्या? अब क्योंकि आपने देखा कि रियल नंबर्स रख सकते हैं, रियल वैल्यू रख सकते हैं, तो वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैट्रिक्स क्या है, डिटेल आपके दिमाग पे आ गया होगा, एक पिक्चर बन गया होगा कि मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसके डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं। डायमेंशन के ही बेसिस पे इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है इसमें सिर्फ कॉलम दिखाई देगा आपको, मतलब एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है। तो एक ही कॉलम है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, एक से ज्यादा कॉलम नहीं, इट हैज ओनली वन कॉलम। जब रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इट हैज ओनली वन रो। डायमेंशन की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप समझते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेक्टेंगल के शेप्स पॉसिबल है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, जहां पे रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाए तो डायमेंशन इक्वल हो जाएंगे दोनों, m/n हो जाएगा। m=n का मतलब ही स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। मैट्रिक्स होता है।
सर 1 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ठोक एलिमेंट दिया है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ जी, एक ही सिंगल एलिमेंट है तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1 by 1 होगा, 2 by 2 पॉसिबल है। जैसे आपको एक 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है, तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा वहां डायगोनल आ जाएगा, बाकी जगह डायगोनल की बात नहीं होगी। और जब भी डायगोनल की बात होगी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसा चलेगा, इसको हम डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। तो डायगोनल की एंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पे 1 4 6। डायगोनल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डायगोनल वो जगह होती है जहां पे रो और कॉलम बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं। देख लो 1 1 2 2 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये याद रखेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में यही चीज बता रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाता है कि अब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी पर्टिकुलरली आपको डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट रहेंगे, बाकी जगह एलिमेंट नहीं रहेंगे। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज है, बाकी जगह जीरो है। तो जहां कहीं भी i j इक्वल नहीं है वहां पे जीरो है। i j इक्वल नहीं मतलब समझ रहे हो, डायगोनल को छोड़ के बाकी जगह को i j बोल रहे हैं। तो b i j, i इज नॉट इक्वल टू j, जहां जहां अगर है नॉट इक्वल है और वहां एलिमेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो हम उसको बोल रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये नंबर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे नंबर अलग अलग है, डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं दे आर ऑल डिफरेंट। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो एंट्रीज है वो जाती है सेम। ये क्लियर है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यही स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सब के लिए जरूरी चीज क्या है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर स्क्वायर ही नहीं है तो सब बात नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी बात होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जहां जहां डायगोनल के एंट्रीज हैं वहां 1 1 हो जाते हैं, इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट करो, 2 by 2 का नोट करो और 3 by 3 का नोट कर लो, ठीक है। ये 1 ऑर्डर 2 3 ये सब आपको लिख दिया मैंने। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे ख्याल से आपको काफी समझ में आ रहा होगा, बुक में भी आपके सब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो। देन जीरो मैट्रिक्स की बात करें, सारी एंट्री जीरो हो जाती है। अब उसके लिए डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स मतलब ऑल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहली बात तो ये उनका ऑर्डर सेम हो, और सेकंड बात कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन पे, जैसे दिख रहा है आपको ये, जहां जहां पे जो जो एंट्रीज लिखी है वो एंट्रीज इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अब ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं होगा, जो बाद में लिखा हुआ है ये वाला, जैसे 3 की जगह 2 लिखा है, देन 2 की जगह 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे सारे के सारे इक्वल नहीं, इनको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इनको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए करणप्रीत। एंट्रीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या लिखा है वो पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट के एंट्रीज नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको इफ 2 मैट्रिक्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड जी, ये सारे आपको नंबर्स निकाले, बड़ा आसान है। बस वैल्यू आप इकट्ठे करते जाइए, कौन कौन सी जगह पे क्या इक्वल है, आपको बहुत सारे इक्वेशन मिल जाएंगे, यू कैन सॉल्व इट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करना है। चीजें समझ में आ रही है क्या? इक्वेशन सॉल्विंग आपको आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे भी वही है कि ये जो चीज है इसके इक्वल है ये, तो कौन से सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे पहचानना ये समझ में आ रहा है, उस ऑर्डर पे होना चाहिए। तो 3.1 जो है बड़ा आसान है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह के मिलेंगे। आई होप कि आप ये बना लेंगे। एक जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जहां से मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहूंगा वो है स्पेशली एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10। ये इस तरह के पैटर्न जरूर आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, बोलता है कि 0 और 1 ही एंट्री हो सकती है, या तो 0 होगा 1 होगा, और इसमें कुछ भी कितने भी 0 और कितने भी बना सकते हैं। टोटल कितने प्लेसेस हैं अपने पास? 9 प्लेसेस हैं, करेक्ट। हर एक प्लेस के लिए कितने चॉइस आ रहे हैं? 2 चॉइसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 9 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, क्योंकि अरेंजमेंट की बात हो गई। आपको कुछ वहां पे रखने हैं, कुछ वैल्यूज रखने, कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ प्लेसेस हैं मैट्रिक्स के अंदर में, तो वहां पे भी, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जेई वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। बट अभी फिलहाल आपके लेवल पे पहले एक्सरसाइज में
मैट्रिक्स कैसे फॉर्मेशन होता है, ऑर्डर क्या होता है, एंड देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें क्या होती है, आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में। यहाँ तक क्लियर है क्या मैटर? Yes. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, जैसे एडिशन होगा, जैसे इक्वालिटी पढ़ा, वो भी एक तरह का ऑपरेशन है, समझ जाओ। ऑपरेशन नहीं है वो, जस्ट इक्वल कैसे करते हैं। तो जैसे इक्वल करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, वैसे ही एडिशन में भी वही चीज किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम कर देते हैं। जैसे अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो इसके लिए भी वही शर्त है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करते जाना है। तो अगर आप इक्वल समझ गए हैं तो एडिशन भी आपको समझ में आना चाहिए, बस प्लस इक्वल साइन की जगह आपको प्लस प्लस कर देना है। तो देखो दो मैट्रिक्स को हमने प्लस कर दिया और इस तरह से आपको ये आंसर मिल गया। ये चीज समझ में आ रही है कि एग्जाम्पल नंबर 6 एडिशन ऑपरेशन समझ में आ गया? गुड। मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर का मतलब होता है कि पूरे मैट्रिक्स में अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा? क्या सिर्फ एक दो एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा कि सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा? तो यहाँ पे जवाब ये है कि जब भी आप मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, मैट्रिक्स अगर ए है और अगर मुझे माइनस ए लिखना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स में माइनस लगा दूंगा। तो वो जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी एक कांस्टेंट नंबर से, वो सारे एलिमेंट में करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ए लिखा है, बी लिखा है, अब बोलता है कि 2a माइनस बी निकालो। बहुत आसान है, पहले 2a निकाल लो। तो 2a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा है सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसके आगे कुछ नहीं, बस आपको माइनस करना है, चाहे प्लस या माइनस, सेम प्रोसेस है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, वहां से आपको बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल 7? अब क्योंकि आप ऑपरेशन पढ़ लिए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, लाइक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आपको पता है कि कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि इनके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे a प्लस बी है वो हमेशा b प्लस ए के इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ हमेशा बताता है चेंज ऑफ ब्रैकेट को, जैसे a प्लस बी प्लस सी है तो पहले आप a प्लस बी कर लीजिए फिर प्लस सी कर लीजिए, या फिर पहले b प्लस सी करके a में ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरह के लॉ हैं जो होल्ड करते हैं, इस पे सवाल भी बनते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है उस पर आप ऐसा कोई मैट्रिक्स ऐड कर दो कि उसका आंसर जो है वो मतलब जीरो, नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए सेम मैट्रिक्स आएगा। जस्ट लाइक कि किसी भी नंबर पे जब आप जीरो ऐड करते हो, लाइक 5 प्लस 0, तो आपको आंसर हमेशा 5 मिलता है। तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड ऑलवेज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे नल मैट्रिक्स जो होगा दैट विल बी द, और द जीरो मैट्रिक्स विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये समझ में आ रहा है? एडिटिव आइडेंटिटी, नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बिल्कुल सेम है कि +5 में क्या करें कि वो 0 हो जाए, तो -5 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो भी आपके मैट्रिक्स आ रहे हैं बस उसका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ए है तो माइनस ए हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं जो एनसीईआरटी के एक एक कॉर्नर से आपको पढ़नी चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप ब्रैकेट खोल सकते हो k प्लस ए, तो k प्लस के भी हो सकता है। k प्लस एल प्लस ए है तो k एल प्लस ए हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रूविंग दिया हुआ है, आपको प्रूविंग करना नहीं है। दो ही प्रॉपर्टी है मेनली, ये ऊपर में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये इतना समझ लीजिए, इसके आगे के सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एक आध नंबर का, जनरली 1 मार्क का जरूर आता है यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 8 है, मैट्रिक्स एक्स दे दिया है, आपको बोलता है एक्स निकालिए। बड़ा आसान है एक्स निकालना, कैसे? 5b कर दीजिए, ट्रांसफर करके -2a कर दीजिए और पूरे के अपॉन में 3 कर दीजिए। मेरे ख्याल से अब आप हैंडल कर लेंगे क्योंकि ए और बी दे दिया है। क्लियर है क्या ये चीज? क्योंकि हमने ऑपरेशन पढ़ लिया, एडिशन का ऑपरेशन पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से ब्रैकेट कैसे ओपन हो सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ ली हैं। ऑपरेशन आपको समझ में आ गया, आई होप कि आप ये कर लेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? गुड, वेरी गुड। तो कभी भी ऑपरेशन लगाएंगे तो x का आंसर भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स ही बनेगा, कोई नंबर नहीं आएगा सॉल्व करने से, ठीक है? इट विल बी ऑल्सो अ मैट्रिक्स। तो हमेशा याद रखिए जो ऑर्डर चल रहा है, सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। x प्लस 5 दे दिया है और साथ में आपको दे दिया है x माइनस 5। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली y एलिमिनेट हो जाएगा, x मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही है क्या? क्योंकि आपने ऑपरेशन पढ़ लिया, बस ऑपरेशन पे कुछ सवाल बन रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो इक्वालिटी का भी है और एडिशन का भी है, ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ये मिक्स टाइप का एक क्वेश्चन है। करना क्या होगा, पहले एडिशन करिए लेफ्ट हैंड साइड को, देन कंपेयर कर दीजिए, आपको वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल 11 में देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया है। पुलकित पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए 11, एग्जांपल नंबर 11। Two farmers, Ram Kishan and Gurucharan Singh, cultivate only 3 varieties of rice, namely Basmati, Permal, and Nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. जी, क्या समझ में आ रहा है बताइए कि एक जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ आंसर देने हैं ना। क्या आंसर देने हैं देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो पुलकित। कंबाइंड Find the सेल्स। combined sales in September and October for each farmer in variety. अब देखो कितना प्रैक्टिकल सा एक मैट्रिक्स का, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं बोलूंगा एनसीईआरटी बहुत चुन के बहुत ही अच्छे से डिजाइन करता है अपने सिलेबस को और बहुत अच्छे से रखता है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है। मैं बोलूं कितना बढ़िया एग्जांपल है कि मैट्रिक्स आपको इसी एग्जांपल में समझ में आ गया कि दो किसान है, दोनों के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ कुछ वैरायटीज है इनके पास। ठीक है, राम किशन एंड गुरुचरण सिंह जो है ये किसान है, ये इनकी सेल्स बता रहा है सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ की। कितना बढ़िया चीजें बताओ, ये कंप्यूटराइज्ड है, जो हम लिस्ट बनाते हैं एक्सेल सीट पे जस्ट लाइक दैट, करेक्ट। और जब आप इसको बोल रहे हैं कि अक्टूबर में और सितंबर में मिला के कितना इन्होंने सेल किया वो निकालिए कंबाइंड सेल, तो निकाल सकते हैं कंबाइंड सेल। एडिशन करना है आपको करस्पॉन्डिंग। राम किशन का बासमती में, बासमती का कितना, ये चावल के वैरायटीज हैं, बासमती चावल। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता ये क्या है, परमल, नौरा, ये वैरायटीज होंगे कुछ अनाज के। ठीक है, तो इन्होंने कितना कितना सेल किया, हर एक वैरायटी का एक पूरा डिटेल आ गया। ये चीज समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि सितंबर में कितना था वो और अक्टूबर में कितना था, उनका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, सितंबर माइनस अक्टूबर कर देना है आपको, तो मालूम चल जाएगा डिक्रीज कितना है। अभी बोलता है इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अब यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज ले आया कि फार्मर को अगर प्रॉफिट हो रहा है ग्रॉस सेल पे, ठीक है, ग्रॉस सेल मतलब ये पूरे तीनों को मिला के ग्रॉस सेल है, रामकिशन का और गुरुचरण का ये ग्रॉस सेल है अक्टूबर मंथ का। वैसे यहाँ पे 2 मंथ है, सितंबर और अक्टूबर। तो बोलता है बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। ये सिर्फ अक्टूबर की बात कर रहा है। तो 2% अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना है आपको, 2% इसने ले लिया बी का, आपको दिख रहा होगा 2% बी का क्या होता है, जस्ट प्रॉफिट के बारे में आपको बताना है क्योंकि वो सेल है। ठीक है, सेल हुआ है तो उसी सेलिंग पे कितना परसेंट जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, वो ये एक्चुअल में आपको मैट्रिक्स दिख रहा है वो सेलिंग का बता रहा है। तो सेलिंग पे हमको क्या प्रॉफिट हुआ है वो हमको आपको बताना है कि जैसे इसको 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ, इसको 200 प्रॉफिट हुआ इस वैरायटी पे, राम किशन को अक्टूबर मंथ का पूरा डिटेल बता रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या चीजें? परसेंट भी कैलकुलेट कर लिया हमने, अंदर में परसेंटेज भी लगा दिए क्योंकि नंबर का परसेंटेज निकालना आपको आता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या बताइए? देखिए मल्टीप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इसको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज टाइम भी वैसे नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, तो आने वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मेरे ख्याल से काफी सबसे बड़ा एक्सरसाइज मेरे ख्याल से यही होगा और इसके बाद कुछ खास मतलब रहता नहीं मैट्रिक्स में। मेन चीज है ऑपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है जो कि हम कल करने वाले हैं, लेकिन 3.2 में आप वो सारी चीजें कर लीजिए जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी या ऑपरेशन है। तो आप जो है अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसका नहीं बना पाएंगे 1 का, तो आप ये छोड़ दीजिए। ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चन है उनको आप बना लेंगे जहां एडिशन वगैरह है इस तरह के, जहां जहां प्रोडक्ट लग रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जहां जहां एडिशन वाले क्वेश्चन वो आप बनाइए जरूर। ठीक है, कहीं कहीं पे मिक्स क्वेश्चन होंगे तो जो आपको बन सकता है प्रोडक्ट को छोड़ के इक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, ये सब आपको बनाने हैं। तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, दोनों बनाइए। सेकंड एक्सरसाइज काफी बड़ा है, जब हम कल उसको मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ट्रांसपोज पढ़ने के बाद इनकी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये भी टाइम टेकिंग है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स पूरा पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट है जो थोड़ा छोटा टॉपिक है, बट मैट्रिक्स तो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए कल करते हैं बाकी, है ना, रिमेनिंग चीजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.